Yes, hello to everyone. I welcome you all to this new session on Daily News Digest. We are discussing various newspapers, important articles from various newspapers. और उसी क्रम में I have two articles today from the Indian Express. The first article basically is a very hot topic, a burning issue as of now. India-Canada diplomatic ties in a tailspin. Commercial ties could also see a change. I think this is a very important article from international relations perspective because of multiple reasons. पहला ये है कि this has been a significant escalation of tensions between India and Canada. The pot was brimming since the last 1 year. ऐसा लग रहा था कि चीजें ठीक नहीं है भारत और कनाडा के जो रिलेशनशिप है उसमें, लेकिन ultimately it has taken a very difficult turn as of now. And India has ordered the expulsion of 6 Canadian diplomats on Monday. And we have also announced the withdrawal of our High Commissioner from Canada. इंडिया कनाडा में इंडिया का हाई कमीशन है. प्लीज ट्राई स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज का भी डिफरेंस अंडरस्टैंड करें कि एम्बेसी और हाई कमीशन में क्या फर्क होता है. कनाडा में वी हैव अ हाई कमीशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कैनेडियन पेंशन फंड के इन्वेस्टमेंट्स हैं वर्थ $75 बिलियन, दे ऑल्सो माइट बी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रन स्मूथली. और बहुत सारे इनफ्लो ऑफ रेमिटेंसेस, ये सारे इश्यूज हैं जो इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं फिलहाल. तो दिस आर्टिकल कवर्स दो स्पेसिफिक इश्यूज इन अटमोस्ट डिटेल. इसमें बड़े स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट भी लिखे हुए हैं कि कैनेडियन इन्वेस्टमेंट क्या है. आई थिंक स्टूडेंट्स शुड मेक अ नोट ऑफ दिस कि कुछ बड़ी कंपनीज, टिम हॉर्टन्स और मैकेन फूड्स, कनाडा की बड़े ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे. From that, this article also has a lot of data which I think the students should note down. जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटी एजेंसी ने कहा है कि कनाडा इज द 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया with a cumulative investment of approximately $3.31 billion since the past 3 years. तो काफी decent amount of investment कनाडा का भारत में होता है. Canadian investments account for 0.5% of total FDI. This number is also important for the students. And Canadian pension funds have invested approximately $75 billion in India. And India is considered usually as a favorable destination. So since the relationship has stalled, there is a chance that this investment might go dry. इसके अलावा, apart from this, many of our Indian companies are also heavily invested in Canada. So this makes this particular issue a little tricky one. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. रेमिटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो कनाडा से ठीक ठाक रेमिटेंस इंडिया में आता है. इंडिया का टोटल रेमिटेंस है अप्रोक्सीमेटली $125 बिलियन एज पर 2023, एंड कनाडा इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज in terms of remittances to India. And it contributed approximately 0.6% of the total inward remittance in 2021-22. I think these numbers say a lot for themselves and students should note them down. इसको लिखना चाहिए. इसके अलावा Indian students account for nearly 40% of all international students in Canada, which also makes this a very significant number. ट्रेड टाइज की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी लिखे हुए हैं. जैसे इंडिया के मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन स्टील आर्टिकल्स. सिमिलरली कनाडा ऑल्सो similarly imports a lot of equipments, exports a lot of equipments to India. Prominent among them being uranium, जो कि पावर जनरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट. एंड लेंटिल्स इज अनदर कमोडिटी जो हम काफी हद तक कनाडा से इंपोर्ट करते हैं. एंड थिंग्स नीड टू बी सीन कि किस तरह से ये बायलैटरल रिलेशनशिप इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस रखेगी. लास्ट में भी कुछ इस आर्टिकल में डेटा लिखे हुए हैं विच आई थिंक द स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑफ, एंड अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सर नाउ तो what sort of questions can be asked like bilateral issues को लेकर क्या मेंस में या प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं? सर, आई बिलीव बोथ प्रीलिम्स और मेंस के अर्लियर आईआर के क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आते, बट रिसेंटली यूपीएससी हैज स्टार्टेड अ न्यू ट्रेंड जिसमें वो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी पूछ रहे हैं. बट मेंस में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन बायलैटरल रिलेशनशिप्स. जैसे 2020 में देयर हैज बीन अ क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस डील्स ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील्स. आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें हमें इंडो यूएस डिफेंस डील्स को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम रशियन. सिमिलरली इंडिया एंड जापान के रिलेशनशिप पे 2019 में फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ चुका है. We have had a question on marginalized nations. We have also had a question, multiple questions on India and United States and their relationship. तो मेरे हिसाब से बायलैटरल रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा रहती है. लेटेस्ट 2024 के पेपर में वी हैव हैड अ क्वेश्चन ऑन मॉलडीव्स, इंडिया एंड मॉलडीव्स रिलेशनशिप. तो आई थिंक देयर इज अ चांस दैट नेक्स्ट ईयर और next year there may be a question on India Canada bilateral relationship and the subsequent challenges which both these countries are facing. So in that sense this becomes important.
एक आर्टिकल और इंडियन एक्सप्रेस से आया है विच इज ऑन अबेटमेंट टू सुसाइड या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. तो आई थिंक द स्टूडेंट्स शुड गो थ्रू टू थ्री थिंग्स इन दिस आर्टिकल. फर्स्ट इज अबेटमेंट जो है वो सेक्शन 107 ऑफ द इंडियन पीनल कोड का पार्ट था इन 1860 विच इज द सेम एज सेक्शन 45 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023. स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता पिछले साल ही लॉन्च हुई है एंड अल्टीमेटली देयर हैव बीन न्यूमरस सेक्शंस जो अब हमें याद रखना है. जिस तरह से हम आईपीसी को, सीआरपीसी को याद रखते थे उनके स्पेसिफिक सेक्शंस को, अब कोशिश करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है भारतीय न्याय संहिता के, दे शुड बी नोन टू अस. सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया है जहां पे दे हैव सेड कि अबेटमेंट टू सुसाइड में अननेसेसरी प्रोसिक्यूशन को अवॉइड करना है. अबेटमेंट टू सुसाइड पर्टिकुलरली इन द वर्क प्लेस, अगर किसी ने काम के हवाले से अगर कोई एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया है तो देयर फैमिली शुड नॉट बी अननेसेसरली प्रोसिक्यूटेड. दैट इज द कोर आर्ग्यूमेंट व्हिच हैज बीन गिवन हियर. और पनिशमेंट्स, इस आर्टिकल में कुछ फैक्चुअल नेचर की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये अबेटमेंट टू सुसाइड होता क्या है. दिस इज इंपॉर्टेंट आई थिंक. देन as far as punishment is concerned, it is up till 10 years of imprisonment along with a fine. So this also is something which should be known to the students. फिर इसमें कुछ और फैक्ट्स दिए हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे. आई थिंक द स्टूडेंट शुड हैव अ लुक एट दिस. और टॉप कोर्ट ने कहा है कि अल्टीमेटली जो डिसीजंस भावना में बह के लिए जाते हैं, ऑफिशियल कैपेसिटी रिलेशनशिप और इस तरह की जो कीवर्ड्स हैं, आई थिंक दे हैव ट्राइड टू define these particular keywords which will help in the future judgments. आगे चल के jurisprudence में आसान करेंगे. एक जो कॉमन कहना चाहिए कि आउटकम निकल के आ रहा है वो ये है कि द कोर्ट हैज सेड दैट अननेसेसरी प्रोसिक्यूशन, अननेसेसरी कहना चाहिए कि प्रॉब्लम्स which are associated with job related stress या workplace, they should not be कहना चाहिए unnecessarily emphasized upon. एंड कोशिश की जाए कि ये जो अबेटमेंट टू सुसाइड के केसेस हैं इसमें एक स्पेसिफिक लॉ बना के इसको रोका जा सके. द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन, द ऑनरेबल कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन कि हम यहाँ पे एक फुल फ्लेजेड लेजिस्लेशन के थ्रू इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं. सेंसिटाइजेशन, लॉन्ग टर्म काउंसलिंग, इन सब का भी प्रमोशन करके इस चीज को रोका जा सकता है. तो आई थिंक दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव. थोड़ा फैक्चुअल नेचर का आर्टिकल है तो मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स इसको देखें और इससे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, एग्जाम्पल्स, डेटा है उसको निकाल एक्सट्रैक्ट करें. Now, I would like to invite Gani sir to take the discussion forward. थैंक यू सर. आज भी न्यूज़पेपर में कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट दी पीएम गति शक्ति स्कीम. दिस टॉपिक कम्स अंडर जीएस पेपर 3 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड द एम ऑफ दिस स्कीम. ये स्कीम है क्या, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है. The aim of this scheme is to ensure the integrated planning and implementation of the infrastructure. अब यहाँ पे आपको ये जानने की जरूरत है कि हमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी एंड व्हाट इज द इंटीग्रेटेड प्लानिंग. यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्लानिंग होती क्या है, दूसरा की नीड क्या है इंटीग्रेटेड प्लानिंग की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दैट व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. और जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो होता है वो क्यों बढ़ जाता है. तो ये इस न्यूज में काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं. एंड ऑल्सो ट्राई टू लुक फॉर द वे फॉरवर्ड टू दिस इशू कि किस तरह से हम उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो पीएम स्कीम से वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि काफी क्वेश्चन आते रहते हैं. ये जो स्कीम है पीएम गति शक्ति, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इम्पोर्टेंट है. ओके, एंड नाउ सर आपने इस स्कीम को थोड़ा इलेबोरेट कर देंगे क्या, पीएम गति शक्ति? श्योर सर. सर बेसिकली एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म में जहाँ पे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे. पहले क्या होता था, काफी हडल होते थे किसी भी प्रोजेक्ट को लागू करने में. मान लीजिए अगर कोई प्रोजेक्ट लागू होता है उसके बाद कोई फिर वो रोड खुदाई, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि रोड बनता है फिर वहां पे याद आता है कि टेलीफोन लाइन तो डाली नहीं, फिर टेलीफोन लाइन डलती है, फिर रोड बन जाता है, फिर याद आता है कि वाटर पाइपलाइन नहीं डाली, फिर रोड हटता है, फिर वाटर पाइपलाइन डलती है, फिर रोड बनता है. तो इस तरह के हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए पीएम गति शक्ति स्कीम लॉन्च करी गई है, सो दैट एक ही बार में जो भी प्लान है किसी भी एरिया या किसी भी लोकेलिटी, किसी स्टेट या रीजन को लेके, वहां पे वो स्कीम सारे डिपार्टमेंट से कंसर्न लेके फिर वहां पे इम्प्लीमेंट हो, सो दैट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो एक ही बार में बन जाए, बार बार हमें उसमें डिले भी ना होना पड़े और ज्यादा कॉस्ट भी ना आए उस प्रोजेक्ट की. इस पे सर ऑलरेडी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है.
अभी 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू स्कीम, एंड द क्वेश्चन वाज द गति शक्ति योजना नीड मेटिकुलस coordination between the government and the private sectors to achieve the goal of connectivity. बेसिकली ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है। इसमें हर तरह के जो मॉडल है, लाइक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लाइक रेलवेज, रोड, एविएशन, सब इंक्लूडेड है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे, बायपोल्स एंड इलेक्शंस। ये काफी कॉमन न्यूज है आजकल, आप देख ही रहे होंगे कि डेली जो फ्रंट पेज है हमारा सिर्फ इलेक्शन की न्यूज से कवर रहता है। तो यहाँ पे इस न्यूज में, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, यहाँ पे बाईपोल इलेक्शन के बारे में कहा गया है कि 48 असेंबली सीट्स पे बाईपोल इलेक्शन होंगे और 2 लोकसभा के सीट्स पर बाईपोल इलेक्शन होंगे। द मेजर थिंग दैट यू नीड टू नोट डाउन ओवर हियर इज टू नो व्हाट इज बाईपोल्स। बाईपोल्स को बाई इलेक्शंस भी कहते हैं या स्पेशल इलेक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो आप पता लगाइए कि बाईपोल्स होते क्या है, इनका पर्पस क्या है, और इनका अकेरेंस कब है, कब कब और किस किस कंडीशन में बाईपोल्स कंडक्ट किए जाते हैं, उनका टाइम फ्रेम कितना होता है, और फाइनली व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दीज बाईपोल्स। ओके, सो दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन cover from this particular article. Okay, so that's it from my side. Now I like to invite Gaurav sir to take the discussion forward. Thank you. Thank you, Gani sir. So, today I have a very interesting article to share with all of you. I hope my page is visible now. So this article is regarding the uh, Nobel Prize that has been given for the economics, and this the Nobel laureates have discussed over why some nations fail and why some nations are emerge prosperous. तो उसका उन्होंने reasons बताया है कुछ. Is it visible now? Okay. So it's a very interesting article where the Nobel laureates who have received the economics Nobel this year for why some nation emerge prosperous and why some nation remain poor. तो उसका उन्होंने काफी अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है, बताया है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर इट. तो वन ऑफ द रीजन इज कि एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए. दीज आर अकॉर्डिंग टू डगलस नॉर्थ, जो एक नोबेल लॉरेट रहे हैं, उन्होंने बताया कि दैट institutions और इकोनॉमी इंस्टीट्यूशंस जो बनाते हैं एक नेशन सेटअप्स अप इंस्टीट्यूशन शुड बी इंपॉर्टेंट, कि एक इंडिविजुअल का एक इंसेंटिवाइजेशन हमें करना है. तो वी शुड नॉट एक्सट्रैक्टिव. अब आप एग्जांपल ले सकते हैं, देयर इज अ टर्म कॉल्ड लैफर कर्व. लैफर कर्व आप सब जानिए कि लैफर कर्व क्या होता है. इफ देयर टू मच टैक्सेशन ऑन द सिटीजन्स विल स्टार्ट स्किपिंग दैट. ठीक है, तो और दूसरा है, और एक और इससे हम अपने देश से सीख सकते हैं, वो है एलपीजी. जब रिफॉर्म्स आया उससे पहले गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल्स होता था. व्हेन द एलपीजी रिफॉर्म केम, our economy opened up and we saw prosperity आई हमारी इकोनॉमी में. तो इट्स इट्स मेंशनिंग कि एक एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी क्या होता है, कि एक्सट्रैक्टिव व्हेन देयर आर टू मच टैक्सेशन, टू मच एक्सट्रैक्शन, तो वो इकोनॉमी फेल करती है. एंड देयर द रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी. अगर रिस्पेक्ट फॉर द प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगा, देन देयर विल बी इंसेंटिवाइजेशन फॉर द इनोवेशंस. वी कैन से दैट अगर there are a patent, some people are working on the patent, and if अगर उस patent के लिए if there no law in the country, it will not innovate the citizens to make a effort for the patent, good R&D के लिए वो effort नहीं करेंगे. So it, and whereas in Western nations you see the whole lot of infrastructure is there for the patent protection. तो patent protection होता है वहां पे, तो people put their in hard labor into making an innovation. तो वो इस तरह के nations prosper करते हैं. तो whole article ये आपके GS3 जो इकोनॉमिक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट पेपर है. ठीक है, और इसमें बात और की गई है कि जो कोलोनाइजेशन पहले हुआ है, शायद वो भी एक रीजन रहा है. दो नेशन ईस्ट वेस्ट का डिवाइड है, कोलोनाइजेशन जो हुआ, दैट हैज एक्सट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द कोलोनाइज्ड नेशंस, एंड दैट कैन बी एक reason cited for the these nations has remained poor. So these are this is the important takeaway from this article. Now moving to the next article.
इट्स लाइक Hyundai Motors ने अपना IPO लॉन्च किया है, दे हैव लॉन्च देयर IPO, तो दे स्टूडेंट्स शुड बेसिकली नो व्हाट इज एन इनिशियल ऑफर इज, एंड दे शुड नो कि ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। ये इसमें दिया नहीं है, बट दे शुड नो दैट बिकॉज IPO इज लॉन्च्ड इन प्राइमरी मार्केट, so they should know primary and secondary market, difference between primary and secondary market. Then there is a like कुछ टर्म्स मेंशन है, लाइक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर लाइक अस, जो हम लोग रिटेल मतलब रिटेल में हम लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन IPO में, वी आर द रिटेल इन्वेस्टर्स। देन देयर द मेंशनिंग ऑफ लाइक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये क्या होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्या होते हैं? लाइक SEBI has defined this term qualified institutional buyers. They have like having expertise in the financial market and the resources to invest. जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, पेंशन फंड्स हो गए, लाइक बैंक्स हो गए, दे आर क्लब्ड अंडर दिस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो ये इस तरह का है। एंड देन देयर इज वन मोर इंफॉर्मेशन फॉर यू दैट इट इज वन ऑफ द largest IPO launched in India ever, surpassing the previous IPO which was launched by LIC few years ago. So this is a basic takeaway from this whole article, and I expect a student to know difference between primary and secondary article, these various types of investors, qualified investors कौन होते हैं, institutional investors कौन होते हैं, retail investors कौन होते हैं, they should know about it. सर तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस बता सकते हैं क्या है? So primary market is like when for the first time a security is floated in the market, ठीक है, वो अभी लिस्ट नहीं हुआ है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है, ठीक है। व्हेन वी बाय लाइक IPO, ये प्राइमरी मार्केट में आता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, एक बार वो लिस्ट हो जाता है लाइक BSE सेंसेक्स में या NSE सेंसेक्स में, एंड वी बाय इट ओवर सेंस से हम वो स्टॉक एक्सचेंज पे हम खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, तो वो फिर सेकेंडरी मार्केट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इस पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आते हैं जनरली मार्केट पे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लाइक इफ यू कैन सी द स्क्रीन, लाइक कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, द सेंट्रल नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम मशीन इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, ठीक है, कौन प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ इनवाइट Manish sir to take this discussion forward. Okay, I have two articles. The very first is from the Indian Express Explained page. So this article is talking about greenwashing guidelines that is released by Central Consumer Protection Authority recently. So here a student need to know why the practice of greenwashing is increasing in our country as well as in world. The reason behind this is due to highlight sensitivity of climate change. There is rising pressure on corporate and governments to carry out their activities in a way that cause the least damage to the environment. Environment से related जो challenges है, इस कारण से companies और government पे pressure है कि their action or activities should be environment friendly. So in order to project their activity as environment friendly, companies or government are using the concept of greenwashing. इसमें क्या होता है ना कि generally company gives misleading or exaggerated or some false wrong information related to their project, and they project their activity as environment friendly. The extent of this issue is so high that the UN Secretary General has requested country to follow the policy of zero tolerance towards this practice of greenwashing. तो जो तीन यहाँ पे टेक अवे है, पहला कि ये क्यों हो रहा है ग्रीन वॉशिंग, दूसरा ये होता है क्या है, और जो यूएन का एक स्टेटमेंट आया है जनरल सेक्रेटरी का, वो तीन इंपॉर्टेंट टेक अवे है। और उसके बाद से यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है दैट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट, वी नीड टू नो व्हाट इज दिस। प्लस जो 6 प्रिंसिपल्स को फ्लॉट किया गया है टू मेक environmental claim trustworthy, that is really important for students. The very first is the truthfulness and accuracy. If you are making any claim related to environment, no, so your
claim should be based on verifiable information through certificate from authorities. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि yes I am doing, you will have to prove it, certify it, है ना, कि yes my project is environment friendly. Second is clarity and unambiguity, that is ki generic terms we cannot use as a company to certify our project green, environment friendly. Here you will have to support with accurate data. The third one is fair and meaningful comparison. If we are comparing our project with some other project, that should be based on verifiable and relevant data. And the fourth thing is make absolute and relevant claim. You cannot make some ambiguous claim, and you will have to disclose whatever claim you are making related to your project. And the fifth is the imaginary should not be given the wrong impression. This means if you are projecting any visual, the visual elements without providing relevant details or context on the packaging cannot be used. And the final one is the no misleading endorsement. This means कि claim, suggestion, endorsement from non-exist, non-official or untrustworthy authority cannot be used. So this article is very important from means point of view, or this concept of greenwashing may asked in the prelims as well. In the past, there has been some question related to that environment or climate change related. Every year we see 3 or 4 questions in the mains. Every year they are asking question from the climate change. So this article is really important. There is lots of information, so students should focus on this article, and this key takeaways should note it down. सर इसमें ये आप ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में कुछ और बता सकते हैं, इलाबोरेट कर सकते हैं? सर इसमें क्या होता है कि इफ यू आर कैरिंग आउट एनी प्रोजेक्ट, तो यू विल हैव टू take out a study so that it can be find out ki to what extent your project is going to impact the environment. आपके प्रोजेक्ट्स का कितना इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, ये आपको एक स्टडी करके बतानी होती है. The second article is related to a new controversy between Indian telecom companies and foreign telecom companies, that is related to allocation of a spectrum, satellite spectrum. तो इसमें recently क्या हुआ कि इंटरनेशनल जो टेलीकॉम company, they have requested government to not follow the auction route for satellite allocating satellite spectrum. उन्होंने जो रीजन दिया है कि unlike cellular spectrum, satellite spectrum for internet is typically shared among multiple operator and it is not as scarce, है ना. तो ये रीजन उन्होंने दिया है क्योंकि जियो जो कंपनी है वो मांग कर रही थी by citing the 2012 2G स्पेक्ट्रम जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ऑक्शन ही होना चाहिए, है ना. बट इसको टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने कहा कि ग्लोबल जो प्रैक्टिसेस है वो ऑक्शन का नहीं है, स्पेक्ट्रम जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम से रिलेटेड. तो वी आर नॉट गोइंग टू do something extra. It will be allocated on the basis of administrative price. और ये जो प्राइस है वो ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया will decide. तो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट वी need to know what is the difference between the auction and administrative price. तो जो पहला डिफरेंस आता है that is related to pricing method. इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस में गवर्नमेंट प्राइस को डिटरमाइन करती है, ऑक्शन में मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस को डिसाइड किया जाता है. कॉस्ट ऑफ टेलीकॉम कंपनी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस इज एज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, तो इट मे ऑफर लेस लोअर प्राइस टू द कंपनी. और जो ऑक्शन कॉम्पिटिटिव होता है तो ये महंगा होता है ना. और थर्ड है रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का आती है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस से प्राइसिंग के थ्रू कंपैरेटिवली लेस रेवेन्यू आती है बिकॉज दैट इज नॉट दैट मच कॉम्पिटिटिव. और जो ऑक्शन होता है, ऑक्शन के थ्रू कंपनी गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा आती है बिकॉज ऑफ दैट कॉम्पिटिशन फैक्टर. So this is all from my side, and with this I would like to conclude today's session. Thank you all.